Good morning, students. Again, welcome to class 9 social science class. Today we'll continue the discussion of geography. In the previous lecture, we had already discussed about the one physical feature of India. The physical features, I just reminding you the physical features which are first, northern mountain, then northern plain, plateau region, then we have coastal plain, Indian desert, and island groups. These are the 6 physical features of India that we are going to discuss. In the previous class, we have already discussed about the northern mountain. Today in this class, we will discuss about the northern plain. If you go the previous video, you will find that the plates were moving due to the convection current in the magma. This movement of the plate had made the northern mountain, means Himalaya, to emerge. There are 3 types of plate movement. One was the convergent boundary, another one was the divergent boundary, one was the transform boundary. We will study now in this section how the northern plains were formed and its features. We had been discussing that the Indo-Australian plate, now it is called Indo-Australian plate, but in the early India and Australia was the separate one for around 3 million years. Now it has got the diffused down and forming a single plate. It is moving towards the northeast direction. It means towards the much bigger Eurasian plate. It collided with the Eurasian plate, which gave rise to the northern plain. Now see it. Suppose that if we take it, roughly diagram, much bigger Eurasian plate, and it was subdued by the Indo-Australian plate. Indo-Australian plate was simply submerging into the much bigger Eurasian plate. Here the mountain range developed, that is Himalaya. When mountain develops, we know that in troposphere, as we go up, temperature decreases. यहाँ भी टेम्परेचर कम होगी तो आइस बन गया, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज हिमालय, अबोर्ड ऑफ स्नो. ये मेल्ट होना शुरू कर दिया तो मेल्ट होगा तो पानी आना शुरू होगा. दिस सेडिमेंट्स एंड दिस सेडिमेंट्स ब्रॉड एंड इट मेड इट द प्लेन. इसको फर्टाइल प्लेन बना दिया. इसको थोड़ा सा आप साइड बाय रोटेट करके देखें. ये मैंने देखा कि कैसे बना.
under the much big Eurasian plate, Indo-Australian plate was subdued. Due to it, the vacant place or rift place were filled up by the sediments brought from the Himalaya as well as from the peninsular plateau regions. It filled up and it formed a terrace type land, बिल्कुल flat land बना दिया. अब थोड़ा सा इसको रिवर्स कर देते हैं. ये जो हिमालय बना, माउंटेन रेंज बन रहा, water are here. We know the how the stone or rocks break down. They collide with each other when they come with the force of water, speed of following water. एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि आपके घर में जो सीढ़ी है या स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस में जो रैंप है, अगर ये स्लोपी कहीं पे, स्लोपी पे डस्ट और थोड़ा सा कंकर पत्थर का टुकड़ा डाल दो, डालने के बाद ऊपर से पानी गिराओ पूरा फोर्स में, यू विल फाइंड दैट उधर से तो बह के आ रही है, जहां नीचे पे आपका ग्राउंड प्लेन है वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा. जो कंकर पत्थर है वो क्या हो जाएगा, इट विल गेट डिपॉजिटेड, और वहां पर पानी ऊपर से फ्लो नहीं करेगा. जब बहुत ज्यादा जमा हो गया तब पानी नीचे से जाएगा. वो जो सैंड है, सिल्ट है, सिल्ट तो नहीं कर सकते हैं, वो तो गर्द एकदम धूल टाइप का होगा, वो बह के थोड़ा सा आगे जाएगा. द सेम वे इट इज बीइंग फॉर्म्ड and it has the different characteristics on the basis of his formations. Before going through the different composition of the northern plain, we must try to understand when it is stretches, how it is stretches, how long it is stretches. If we talk about the undivided India, means including the Pakistan and Bangladesh. It starts from the Pakistan if we see it from Pakistan, in Pakistan, Punjab, 2/3 Punjab is in Pakistan, Punjab in India, then we have the Haryana, then we have the UP, then we have the Bihar, then we have the West Bengal, excluding the Bangladesh, means Bangladesh भी मिला लिया जाए, and Assam. This fertile plain is stretches around the foothill of Himalaya. बिल्कुल फैला हुआ है. If we include Pakistan and till the end Assam, its length is around 3,200 kilometers. But if in India we are talking about the Gangetic plains or Indo-Gangetic plains, then it stretches around 2,400 kilometers.
पूरा देखा जाए तो इट इज अराउंड 3200 किलोमीटर्स। इंडिया का जो पार्ट्स है इसमें ये 2400 किलोमीटर, 18 स्ट्रेचेस इन ए नैरो बेल्ट। इसका इधर चौड़ाई कुछ ज्यादा है वेस्ट में, ईस्ट में थोड़ा सा कम है। इसमें इट रेंज करता है 320 किलोमीटर्स टू 240 किलोमीटर्स। 320 kilometers to 240 kilometers, ये मेन पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट टिल द वेस्ट बंगाल। हम वेस्ट बंगाल तक की बात कर रहे हैं। इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर। इफ वी इंक्लूड सी द विड्थ ऑफ इट इन असम, then it goes around 100 kilometers to 150 kilometers, 100 kilometers 150 kilometers। पाकिस्तान में इसका विड्थ इट गोज अप टू 500 किलोमीटर्स। इट मींस इट रेंजेस, अगर पूरा देखा जाए तो ये रेंजेस फ्रॉम 500 किलोमीटर्स इन पंजाब पाकिस्तान टू 150 kilometers in Assam। But if we take these parts only, then it is around 320 kilometers to 240 kilometers। गंगेटिक प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स में जहां तक गंगा ने बनाया है, गंगा ने ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बांग्लादेश में बनाया है 320 to 240 किलोमीटर्स। असम में 150 किलोमीटर, पंजाब। अगर ये बात करेंगे टोटल एरिया का, दिस टोटल एरिया इंक्लूडिंग द पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इट इज 2.5 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया इज 2.5 किलोमीटर स्क्वायर। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन इंडिया, इट्स एरिया इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 2.5 millions, 2.5 million square kilometer, and India it has to 7 lakhs kilometer square। 2.5 total। Now you are finding the difference from where we are talking about. We are talking about from the Punjab, that is in Pakistan, till in India to the Assam, 3200 kilometers। Its width is around 500 kilometers over here and 150 kilometers over here. If we talk about the Gangetic Plains, especially the Gangetic Plains till the west of Bengal, then it ranges from 320 to 240 kilometers. Its area is 7 lakhs square kilometers. Then the total area is 2.5 lakhs square kilometers. This we have got the area. Which river has formed? Actually the 3 river system. The 3 river systems. Which are the 3 river systems? Indus, then Ganga and Brahmaputra. Indus and tributaries is another part. Ganga and tributaries, we can say it is the middle part, and Brahmaputra and its tributaries is the eastern part. It means if we are talking the Indus, you might have been knowing, remembering it, the 5 tributaries, especially tributaries of Ganga: Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj, if you see the atlas, you will find that originate and through the Punjab region। वो पंजाब होके निकलता है और किधर चला जाएगा? वो सिंपली चला जाता है पाकिस्तान में, then it sink into the Bay of Bengal, sorry, Arabian Sea। कहाँ चला जाएगा ये? अरेबियन सी में। गंगा ओरिजिनेट करती है इट्स ट्राइब्यूटरीज। अब कहां से बाइफर्केट करेंगे? If we see the Haryana, Delhi,
is situated on the ridge. Ridge means a upland which divides the two water bodies, two water system. We also say it is the water divide. Ghaggar river, don't get confused between the Ghaghra and the Ghaggar. Ghaggar is the seasonal river, एकदम सीजनल है, उसमें मॉनसून में पानी आती है. और घाघरा इज द पेरिनस रिवर्स. जो घग्गर है ये ओरिजिनेट करता है शिवालिक से और वेस्ट ऑफ हरियाणा इट फ्लोज बह के चली जाती है. सीजनल रिवर्स. ये जो घग्गर रिवर है, घग्गर रिवर के वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ऑफ इंडियन डेजर्ट, इधर का पार्ट हो जाएगा हमको इंडस प्लेन. इट इज कॉल्ड इंडस. मीन्स कि अगर देखा जाए तो टेक्निकली जो हमारा पंजाब है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडस प्लेन. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडस प्लेन. दो नदी के बीच के जगह को आप बोलते हैं तो 5 नदी के बीच के जगह को पंजाब, इसलिए नाम पंजाब पड़ा. So west of Ghaggar river, you might have been remembering that while discussing about the division of Himalaya, I had discussed the name of one river, that is the Tista. सिक्किम में ओरिजिनेट करेगी और सिक्किम में ओरिजिनेट करने के बाद वेस्ट बंगाल, हमारा वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी. इसके बीच का जो पार्ट बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता, ये हमारा हो गया गंगा प्लेन. और ईस्ट ऑफ तीस्ता रिवर या ईस्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश एंड वेस्ट ऑफ पूर्वांचल, पूर्वांचल से पहले ये दो हिमालय इधर घूम जाती है, ये पूर्वांचल कहलाता है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो स्टेट पड़ता है पूर्वांचल का हिस्सा है, ये पूर्वांचल हो जाएगा. ये बीच का जो असम का इलाका है इट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र प्लेन. इट मीन्स हैव बी bifurcated these 3 plains. One was the Indus plain, another one was the Ganga plain, and the third part was the Brahmaputra plain. It means we have bifurcated it. कहाँ से कहाँ तक है, इसका एरिया क्या है, डायमेंशन क्या है, at least we have got it. Now we will discuss about the northern plain in detail. Before it, we have got the boundary. North boundary पता है. Where is the north boundary? The north boundary is the south of Shivalik. Northern plain का north boundary क्या हो जाएगा? It is south of Shivalik. And what is the south boundary? South boundary is the north of Peninsular Plateau, or we can say Central Highland. दो parts. और इधर डायमेंशन कहां से कहां तक है? ये जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, और ये नॉर्दर्न बाउंड्री इट इज साउथ ऑफ शिवालिक, शिवालिक के साउथ में. और जो सदर्न बाउंड्री है वो कहां करेगा? ये रफली स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिग-जैग लाइन है. इट इज द नॉर्थ ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, मींस पेनिनसुलर प्लेट. इट मींस वी हैव गॉट द इट्स ब्रेड्थ, इट्स लेंथ वी हैव गॉट. नाउ वन थिंग दैट वी हैव टू do. When the rivers flow originate from the mountains, it carry the stone with it, rocks with it. Rocks collide with themselves, and when the rocks collide, it is broken down to the smaller pieces. कंकर, sand, पत्थर, stone, जो भी हम देखते हैं वो सब बड़े रॉक्स का ही कहीं न कहीं टूटा हुआ वेदर्ड पार्ट्स है.
अब यहां से आया कि रिवर से निकला। अब थोड़ा सा एक डायग्राम समझिए। Rivers started flowing through it. जब यहां से फ्लो किया, अब यहां से ये प्लेन में इंटर करना है जहां स्लोप कम है, स्पीड कम हो जाएगी, तो मोस्ट ऑफ द पेबल्स और कंकर पत्थर जो बोलते हैं ये यहां पर डिपॉजिट हो जाती है। एंड यू नो पीपल्स दैट द पोरोसिटी ऑफ पेबल्स या कंकर इज मच मोर। क्या पेबल्स या कंकर का ढेर है उसके ऊपर हम पानी जमा कर सकते हैं? नहीं, पानी डालेंगे कहां हो जाएगा, वो सिप करके नीचे चला जाएगा। इट मीन्स ये गायब हो जाएगा। इसके बाद ये रिवर यहां प्लेन में आएगी, यहां इट री इमर्जेस। अब आएगा ये है क्या चीज, इसका नाम क्या हो गया? चार नाम आएंगे आपको। पहला नाम भावा, तेराई, भांगर एंड खादर या फिर खादिर। These four names are there. Bhava, then Terai, then Bhangar, then Khadar. Now, this is the Bhavar area. Deposition of pebbles where the streams or river disappears. क्यों डिसअपियर हो जाएगा पता है, क्योंकि यहाँ क्या है, कंकर है। कंकर में पानी नीचे चली जाएगी जहां उसको इम्परमेबल रॉक्स मिल रहा है। इम्परमेबल उसको पोरोसिटी नहीं हो जाती, यहां तो पोरोस होकर चला जाएगा। यहां बिल्कुल रिवर नीचे से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, रिवर इसमें डिसअपियर हो जाती है। ये कितना है, तो ये है 8 to 16 kilometers. If we see the map of India, ये नेपाल, नेपाल के बगल में हमारा उत्तराखंड है। Then we find the small state Sikkim, parts of West Bengal. Then we have भूटान। ये जो इमर्ज करता है तो हमारे यहाँ कहाँ मिलती है, ये जो 8 to 16 किलोमीटर्स का बेल्ट है, इट इज फाउंड इन द उत्तराखंड। This part in Uttarakhand lies between the Ganga and Sharda river. Sharda river मैं बोल रहा हूँ because its name is Kali river also. Kali river also you may pronounce either Kali or Kali, and the same name is the river in the South India also. That's why has been given the name the Sharda. इसका एरिया लगभग 3310 किलोमीटर स्क्वायर। ये कहाँ मिलेगा हमको, उत्तराखंड में। ये जो डिपोजिट हो गया यहां से यहां तक आ गया, यहां पर आते ही आते अप टू हियर्स द रिवर इमर्जेस। रिवर इमर्जेस तो उसका कोई चैनल्स नहीं होगा, एक परफेक्ट वे नहीं है। जैसे कि हम पानी डालेंगे तो रास्ता नहीं बना हुआ तो पानी फैल के आगे बढ़ेगा, जहां स्लोप मिलेगा इट विल स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई आफ्टर एज सून एज इट इमर्जेस इट फॉर्म्स ए
swampy area, दलदली इलाका. This area do not support agriculture. इसमें जो हमारा भावर इलाका है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि क्या है, कैल्केरियस स्टोन्स आर डिपॉजिटेड, कंकर ज्यादा है. यहाँ टॉल ट्री होगा जिसका रूट लंबा हो जाएगा. इट इज बीइंग सपोर्टेड. बट आफ्टर 8 to 16 किलोमीटर विड्थ, इसका मतलब अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो हमारे यहाँ फुट हिल उत्तराखंड पड़ जाएगा और बाकी जो पार्ट्स पड़ेगा वो कहाँ हो गया, नेपाल में हो गया. इस भावर के बाद 10 to 20 किलोमीटर विड्थ का जो एरिया है, यहाँ से जैसे यहाँ से निकला उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का, आई एम कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. इट इज नॉट आई एम गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. To make you understand, I am going from north to south. It is your Bhavar 8 to 16 kilometers. Then it is your Terai. It is 10 to 20 kilometers. This 10 to 20 kilometers, which is the south of Bhavar, इट इज कोसी नदी के इधर वाले इलाके में. ज्यादातर एरिया, इट्स एरिया लाइज इन द नेपाल, ज्यादातर एरिया नेपाल में पड़ जाता है. तो तराई रीजन है विच इज साउथ ऑफ भावर. इट मोस्टली लाइज इन द नेपाल. नेपाल में भी एक तराई बेल्ट हो गया. एक वर्ड तुम लोग सुनोगे, मधेसी. मधेसी Madhesi. Madhesi is referred to those peoples who are migrant from the India, settled in the Tarai region. To differentiate them, a word Madhesi has been used. उनके लिए ये वर्ड मधेसी किया गया है. अभी कुछ दिन पहले हुआ था नेपाल में बहुत सारे वोट. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा थोड़ा सा चेंज किया गया था. अकॉर्डिंग टू इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द मधेसी टू बी इलेक्टेड इन द लार्ज नंबर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन. इट मीन्स इफ यू गो डिस्क्रिमिनेशंस कैन बी सेड. तो ये हम पढ़ रहे हैं कहां से कहां तक, फुट हिल 8 to 16 किलोमीटर्स. इसमें क्या होता है, रिवर डिसअपियर हो जाती है. रिवर डिसअपियर हो जाएगा, इट इज डिपॉजिट ऑफ कंकर्स. इट डू नॉट सपोर्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करेगा. यस, टॉल ट्रीज ग्रो विद द लॉन्ग रूट. उसके और साउथ में आएंगे 10 to 20 किलोमीटर्स. इट इज अ तराई रीजन, स्वैम्पी रीजन, डेंस फॉरेस्ट एरिया. साल फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, बट इट हैज बीन रिमूव्ड. ये बिल्कुल सारा का सारा नेपाल में भी नहीं, इंडिया में भी पड़ता है. इफ यू सी द यूपी का जो एकदम नैरो बेल्ट है, ये तराई रीजन में आ जाता है. यूपी का एकदम नैरो बेल्ट, हमारे इधर इसका बेल्ट बहुत ही कम. यूपी का नैरो बेल्ट तराई रीजन में आ जाता है. इफ यू सी यूपी के लगभग मिडल में, वहां से सटता हुआ एक जगह मिलेगा, यू कैन मे फाइंड इट आउट, लखीमपुर खीरी. इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट लखीमपुर खीरी, तो मैं क्यों बोल रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू कैन फाइंड आउट द दुधवा नेशनल पार्क. दिस दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द तराई रीजन. इसका मतलब इंडिया में भी है. ज्यादा पार्ट कहां है, ज्यादा पार्ट नेपाल में, इंडिया में भी तराई रीजन है. देन इफ फर्दर कम टू द साउथ, इसमें अब आ गया एलुवियल प्लेन. दीज टू पार्ट्स इज कॉल्ड प्लेन. इट मीन्स एलुवियल प्लेन हैज द टू पार्ट्स.
Which are the two parts of the alluvial plain? One is Bhangar and another one is the Khadar. Bhangar and Khadar. अब यहां पे आ गया और साउथ में. Bhangar is the old alluvial deposit and Khadar is the new alluvial deposit. कहा कि जैसे हम नॉर्थ से साउथ में आ गए. बोलोगे सर आपने तो बोला कि एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट होता चला गया. कितना थिकनेस है नॉर्थ पार्ट में? इसका थिकनेस लगभग तराई रीजन बोल सकते हैं 800 मीटर के आसपास. थिकनेस गहराई कितना जो तक नीचे तक हमको ये एल्यूवियल सॉइल मिल सकता है 800 मीटर तक. और साउथ में आएंगे तो इट राइज फ्रॉम 1300 to 1400 मीटर्स. जो हम बता रहे थे नॉर्थ ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, यहां पर इसका जो डेप्थ है इट इज गोइंग टू 1300 to 1400 मीटर्स. इसका मतलब कि नॉर्थ में एल्यूवियल सॉइल का डिपॉजिट कम है. ऑब्वियसली ये थोड़ा सा स्लैंट है, स्लैंट होने का वहां क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, इधर आके थोड़ा सा बढ़ गया. इट हैज इंक्रीज्ड. अब यहां आएगा जो पहले का डिपॉजिट है alluvial deposit. This the earlier alluvial deposit is called the Bhangar. ये हाईलैंड हो गया. अगर हम बता दें कि रिवर गया रिवर है, एक रफली के लिए इसको अगर हम रिवर बना दें अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये तुम्हारा और ये पार्ट, ये जो थोड़ा सा ऊंचा पार्ट है हाईलैंड, ये तुम्हारा भांगर है. इट इज ओल्ड alluvial deposit. इट इज ऑल्सो वेरी फर्टाइल एरिया, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल एरिया, बिकॉज इट हैड यूज्ड टू बीन रिन्यूड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय द रिवर. कंटिन्यूअसली ये डिपोजिट होता चला गया ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. इट इज अ वेरी फर्टाइल एरिया. अब ये थोड़ा सा हाईलैंड है. This called the flood plain. Why it is called the flood plain? How the flood plain is formed? Each year when the flood comes during the rainy season, the river spread its water to its bank, and whatever silt is brought by it, it get deposited. जो बहा के लेके आए, एंड जब पानी रिसीड करता है तो सिल्ट रिसीड नहीं करता है. एग्जाम्पल ये कभी देखो थोड़ा सा पानी आ जाता है, बारिश का ही पानी आ जाए, रोड से पानी ऊपर आ गया, आपके कहीं प्लास्टर्ड एरिया है वहां पर आ गया बारिश का पानी, गली का पानी, और जब वो रिसीड करता है तो पानी तो खत्म हो जाता है लेकिन कीचड़ टाइप वहां रह जाता है. इन द सेम वे जब बाढ़ आती है, व्हेन फ्लड कम्स, ये वाटर विथ सिल्ट, क्योंकि सिल्ट कैसे करेगा, क्योंकि पानी बाढ़ में आती है तो उसमें स्पीड होती है, एंड डू नॉट अलाउ टू सिल्ट टू डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द रिवर्स. इट स्प्रेड इट आउट, फैला देता है. अब फैलाने के बाद वाटर स्टेगनेंट होगी, सारा का सारा डिपोजिट हो जाएगा. जब वाटर लेवल कम होगा, वाटर सीड होकर आ जाएगी, वो सिल्ट वहीं का वहीं रह जाएगी. It is a flood formation of the flood plain. It used to happen in the old alluvial also.
So both old alluvial as well as the new alluvial is the very fertile area. It means we are getting it. We are getting it how long it is, 8 to 16 kilometers. Then it is तराई region 10 to 20 kilometers. तराई रीजन थोड़ा सा ईस्ट में इसका विड्थ ज्यादा है और वेस्ट में विड्थ कम। याद रखिएगा, तराई रीजन का विड्थ कहाँ ज्यादा है? वेस्ट, ईस्ट में ज्यादा है, वेस्ट में इसका कम है। इट मीन्स वी हैव गॉट इट द भावर। इमर्ज करता था भावर एकदम फुट हिल ऑफ द शिवालिक, जस्ट टचिंग द बाउंड्री ऑफ द शिवालिक। साउथ ऑफ शिवालिक के साउथ में क्या मिलेगा? तो साउथ के शिवालिक में भावर मिलेगा। कितना लंबा मिलेगा? ये रेंजिंग फ्रॉम 8 to 16 किलोमीटर। ये उल्टा है, ये वेस्ट में चौड़ा है, ईस्ट में कम चौड़ा है। उसके नीचे 10 to 20 किलोमीटर का रेंज, ये आ जाएगा तराई का। तराई का रीजन 10 to 20 किलोमीटर विड्थ। बेसिकली ये दोनों एरिया कहां पर जाती है हमारे पास? नेपाल में। भावर हमारे यहां मिलती है कहां? उत्तराखंड में। तराई का एक नैरो बेल्ट, वी आर फाइंडिंग ए नैरो बेल्ट विद द उत्तर प्रदेश। देन वी आर गेटिंग द भांगर एंड खादर। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द Ganga plain, Indus plain, then another plain that is left out. It is a Brahmaputra plain. Brahmaputra plain is formed by the river Brahmaputra. It has a different name. जहां ओरिजिनेट करती हैं इसका नाम अलग है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। As soon as it enters into India through the Namcha Barwa, U-turn लेगा अरुणाचल प्रदेश में, वहां उसका नाम दिहांग हो जाता है। और जैसे ये इंटर करेगा असम में, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इट्स नेम चेंजेस टू ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र and tributaries has many tributaries. Brahmaputra is famous for making the riverine island. ब्रह्मपुत्र इसलिए फेमस है कि रिवराइन आइलैंड, आइलैंड हम लोग ओशियन सी में देखें, रिवर में भी आइलैंड। अब तो साभी रिवर में कम से कम छोटा सा आइलैंड तो मिल ही जाता है। क्यों? क्योंकि रिवर का फ्लो कम हो गया, सिल्ट डिपॉजिट होते होते जमा होना शुरू हो गया, तो थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। लेकिन ये रिवराइन इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड, यानी कि कहीं मट्टी का टीला दिखाई दिया वो आइलैंड हो गया, ठीक है आइलैंड कह लेंगे, but that is not the inhabited. Brahmaputra has the largest riverine island. Its name is Majuli. Majuli is the largest riverine island that is found in Brahmaputra river. It means we have bifurcated the plains into 3 basic divisions. One was on the basis of formation, Indus plain. Second one, Ganga plain. And third one is the Brahmaputra plain. Indus plain, Ganga plain and the Brahmaputra plain, we have divided it. Now its width, we have discussed it, and if we move from the north to south, what are the found? We are getting it north to south. First we are getting the Bhavar, then we are getting the Tarai, then we are getting the Bhangar, means old alluvial plains, then we are finding the new alluvial plains, means flood plains. Most of the North Indian parts resides in the new alluvial plains or the flood plains. I do hope you have understood till the features northern plain. In the next class we will discuss
the another feature of Indian plane, India.